عوام کے محافظ پولیس اہلکار خود چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے لگے۔ فیصل آباد کے غلام محمد آباد میں یک کے بعد دیگر رہزنی کی 3 وارداتیں، اے ایس آئی سمیت 3 افراد ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون سے محروم کر دیے گئے۔ عوام کے محافظ پولیس اہلکار خود چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے لگے ہیں۔ فیصل آباد کے غلام محمد آباد میں یک کے بعد دیگر رہزنی کی 3 وارداتیں ہوئیں، اے ایس آئی سمیت 3 افراد ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ عوام کے محافظ پولیس اہلکار خود چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے لگے۔ فیصل آباد کے غلام محمد آباد میں یک کے بعد دیگر راہزنی کی 3 وارداتیں، اے ایس آئی سمیت 3 افراد ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون سے محروم کر دیے گئے۔ سبحان اللہ چوک میں ناصر سے 30,000 روپے لوٹ لیے گئے، موبائل فون بھی چھین لیا گیا۔ ڈاکو ایس آئی اسلم سے 40,000 روپے لے گئے، موبائل فون بھی چھین لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ طیب بتائے گا وارداتوں کے حوالے سے بڑھ رہی ہیں۔ جی بالکل، فیصل آباد کا تھانہ غلام محمد آباد، وہاں کی پولیس وارداتوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ غلام محمد آباد کے توسیع علاقوں میں 15 منٹ کے دوران 3 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جن میں 2 شہریوں اور پولیس کے اپنے ہی 33 تھانے دار کو بھی لوٹ لیا گیا۔ کبوتر والا چوک سے اے ایس آئی محمد اسلم سے ڈاکو 40,000 روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ سبحان اللہ چوک میں ڈاکوؤں نے ناصر سے 30,000 روپے موبائل فون چھینا، جبکہ تیسری واردات صدر بازار قبرستان کے قریب ہوئی، جس میں عدنان سے 5,000 روپے تک کے موبائل فون چھین لیا گیا۔ پولیس تینوں میں سے کسی ایک ہی واردات کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ جی طیب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سدھار فیصل آباد میں مبینہ مقابلہ 3 ڈاکوؤں کی ہلاکت کا معاملہ، پولیس مقابلے میں مرنے والے 2 ڈاکوؤں کی شناخت ہو گئی ہے۔ نوید بہاڑی اور وسیم جھنگ کا رہائشی ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں ڈاکو ریکارڈ یافتہ تھے، درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھے۔ تیسرے ڈاکو کی شناخت کے لیے پولیس کی کارروائی جاری ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کرنے کے لیے موجود ہیں طیب مقبول، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، تھانہ ٹھیکری والا پولیس کے ساتھ گزشتہ رات مقابلے میں مرنے والے 3 میں سے 2 ڈاکوؤں کی شناخت ہو چکی ہے۔ دونوں ڈاکوؤں کی شناخت نوید سکنا بہاری اور وسیم سکنا جنگ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دونوں ڈاکو شکار یافتہ اور فیصل آباد سمیت کئی ضلعوں کی پولیس کو متعدد وارداتوں میں مصروف تھے۔ تیسرے ڈاکو کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ اقبال ڈویژن اقبال ملک سیفی کے مطابق جو ڈاکو ہے ان کے نیٹ ورک کی بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ ڈاکوؤں سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تیسرے ڈاکو کی بھی شناخت جلد کر لی جائے گی اور ان کے پورے نیٹ ورک کو بھی تلاش کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ طیب مقبول ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ طیب آپ کا۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بزرگ خواتین خوار، سایہ دار جگہ میسر نہیں، بدتمیزی کی جاتی ہے، گھنٹوں بٹھا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے، خواتین پھٹ پڑی۔ خواتین پھٹ پڑی، فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بزرگ خواتین خوار ہو گئیں، سایہ دار جگہ میسر نہیں، بدتمیزی کی جاتی ہے، گھنٹوں بٹھا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم بتائے گا۔ جی بالکل، بے نظیر انکم سپورٹ میں آنے والی خواتین جو ہیں وہ خوار ہونے لگیں۔ صبح سے لے کے شام تک ان لمبی لمبی لائنوں میں جو ہے وہ لگنا پڑتا ہے، خوار ہونا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اندراج جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ اگر اندراج ہو بھی جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے میسج آنا اہلیت کا، اس میں بھی کافی وقت گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو کئی پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ روز پہلے جو ہے وہ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ فیصل آباد کی جانب سے جو ہے پولیس عملے کا یہاں پر جو ہے مراسلہ جاری کیا گیا کہ یہاں پر خواتین کے لیے ایک فیمیل اور ایک میل سیکیورٹی عملے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ یہاں پر آنے والی خواتین جن کے ساتھ کوئی مسائل جو ہیں وہ پیش نہ آ سکیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹیل دکانیں ہیں جہاں پہ خواتین کو رقم دی جاتی ہے ان کے اندر بھی کوئی مسائل پیش نہ آئے۔ اس وقت میں بے نظیر انکم سپورٹ کے ادارے میں موجود ہوں، جہاں پہ خواتین کا اندراج جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ان کی کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے اس حوالے سے۔ مجھے بتائیے گا آنٹی جی کب سے یہاں پہ موجود ہیں؟ کافی دیر سے بیٹھی ہوں۔ ہاں جی، کافی اندراج کیوں نہیں ہو رہا؟ سال پہلے انہوں نے کیتا ہے، مر کو کوئی پیسے کوئی نہیں آئے، کہنا ہاں جی ہوئے، دوبارہ 3-4 چکر لگائے میں، کوئی گال ہی نہیں سن رہا۔ بالکل 3-4 چکر لگائے لیکن کوئی بات نہیں سن رہا۔ ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں، مجھے بتائیے گا کہ کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میرا یہ سوال، میں سمنا بار گئی تھی تو انہوں نے بولا کہ آپ کا انداز ہو گیا ہے، تو میں نے بعد میں دکانوں پہ چکر لگائے تو میرا نہیں بنا تھا، تو انہوں نے اب مجھے بولا کہ فتح روڈ میں چلی جائے۔ اب میں یہاں آئی ہوں تو آئی ڈی کارڈ میرا اندر چلے گیا ہے،
लेकिन 30,000 में हमारी तनख्वाह है, हम बच्चों के खर्चे पूरे करें, घर का राशन करें, बिजली का बिल दे या रेंट पे हम रहते हैं। हम क्या क्या करें, महंगाई हर दिन, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल अभी महंगा नहीं होता, दुकानों वाले बिल्कुल ही ऊपर को ले जाते हैं रेट को। हम किधर जाएं? हमारी गवर्नमेंट हुकूमत से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारे गरीबों का ख्याल करें, जो हम रेंट पे रहते हैं। हम क्या करें? 5 बच्चे हैं मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, मैं उनकी स्कूल की फीस दूँ, जहाँ मैं उनकी दूँ ट्यूशन की फीस दूँ, जहाँ मैं रेंट करूँ, मुझे क्या तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं उसके बाद में? ये मेरा 6वां चक्कर है, मैं क्या बोलूँ, तो ताब भी नहीं मिलते। चक्कर जो है वो लगाया जाता है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। और भी खवातीन मौजूद हैं। आंटी जी मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगी, यहाँ पे किस तरह के हालात हैं? ना पानी है, ना सायादार जगह यहाँ पे नहीं, गले खुशक हुए हुए हैं। भाई 4 साल हो गए, 5वां शुरू हो गया वा, कहते दराज तेरा होया वा, अभी फिर आप 9वें महीने अगले 2024 के 9वें महीने आना वा, फिर आपको कुछ बताएंगे। पहले बताएंगे जो पहले इंतराज नहीं कर रहे। हाँ, पहले एक बार इंतराज हुआ, वही चल रहा। आप 71 पे मैसेज कर रहे हैं, इस वजह से नहीं तुम्हारे कुछ हो रहा। मैसेज जो हैं वो किए जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन खवातीन का यही कहना है कि यहाँ पे मुश्किलात का जो है एक पहाड़ है, ना ही सायादार जगह है और ना ही पानी। सायादार जगह नहीं है, बदतमीजी भी की जाती है, खवातीन परेशान हैं। मरियम हमें उनके हवाले से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत माली इमदाद हासिल करने वाली खवातीन को लूटने का सिलसिला जारी है। शहर भर में रिटेलर्स 300 से 500 रुपए तक कटौती कर रहे हैं। इसमें खवातीन का क्या कहना है, जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, खवातीन को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत खवातीन को माली इमदाद की तकसीम शुरू कर दी गई है, लेकिन इन खवातीन को लूटा जा रहा है। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं। खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मुकामी इंतजामिया की मिली भगत के बायस जो है वो कटौती की जा रही है। रिटेलर्स जो है वो 300 से 500 रुपये की कटौती कर रहे हैं और इंतजाम भी इंतहाई बुरे देखने को मिल रहे हैं। गर्मी है, गर्मी में ये खवातीन जो है वो बाहर खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, कुछ ज़मीन पर बैठी हैं, अपने छोटे बच्चों के साथ आई हैं। गरीब खवातीन हैं, उनका ये कहना है कि उनके लिए 9,000 रुपये की रकम आई थी, लेकिन उनको 8700 रुपये की रकम जो है वो दी जा रही है। अक्सर दुकानदार 300 रुपये और अक्सर जो है वो 500 रुपये की कटौती कर रही हैं। इन खवातीन ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि जो बच्चों की तालीम के हवाले से इनके पैसे आते हैं, वो पैसे भी इनको नहीं दिए जा रहे हैं और अक्सर खवातीन को अंगूठा लगाकर वापस भिजवा दिया जाता है, जबकि रिटेलर इस बात की भी पाबंद है कि तमाम तर खवातीन को कंप्यूटराइज रसीद दी जाए कि इनके अकाउंट में कितनी रकम जो है वो आई है। ये भी एक टेक्निकल तरीका है खवातीन को जो है वो लूटने का। ताहम खवातीन ने 3041 के तवज्जुह से डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दी जाए। शहर भर में जो है वो इन खवातीन से। बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम झंग का वासवा सताना स्कूल में नाकिस इंतजाम पर एक्शन। स्कूल सरबराह और सिक्योरिटी गार्ड के साथ रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। सीईओ एजुकेशन के दौरे पर सिक्योरिटी गार्ड गैर हाजिर पाया गया। स्कूल सरबराह को सीईओ एजुकेशन के दौरे का इल्म तक न हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी स्कूल के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। वासवा सताना स्कूल को मॉडल स्कूल के तौर पर भी मुंतखब किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्कूल सरबराह महकमा तालीम झंग का वासवा सताना स्कूल में नाकिस इंतजाम पर एक्शन। स्कूल सरबराह और सिक्योरिटी गार्ड के साथ रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। सीईओ एजुकेशन के दौरे पर सिक्योरिटी गार्ड गैर हाजिर पाया गया। स्कूल सरबराह को सीईओ एजुकेशन के दौरे का इल्म न हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी को स्कूल्स के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वासवा सताना स्कूल को मॉडल स्कूल के तौर पर भी मुंतखब किया गया था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि टोबा टैक्सिंग में बड़ी मिकदार में गैर मियारी केचप की बरामदगी के बाद जिले इंतजामिया हरकत में आ गई है। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा तालीम को सरकारी स्कूल की कंटीन पर खाने पीने की अशिया का मेयार जांचने, गैर मियारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। मजीद जानते हैं इस हवाले से अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में गुज़श्ता दिनों पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है वो की छापामार टीम ने टोबा टेक्सिंग में जो है वो बड़ी मिकदार में गैर मेरी कैचअप जो है वो पकड़ ली, जिसके बाद जो है वो टोबा टेक्सिंग की इंतजामिया हरकत में आ गई है। डिप्टी कमिश्नर टोबा की ने जो है वो महकमा एजुकेशन को वादे हदायत की है कि तमाम तर स्कूलों में जो है वो फूड के मयार को जो है वो यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से जो है वो किसी भी स्कूल में जो है वो जो गैर मेरी अशिया हैं बच्चों के लिए जो है वो कैंटीन पर, उनके खिलाफ जो है वो इकदाम किए जाए, की रोकथाम के लिए जो है वो इकदाम किए जाए। इस हवाले से हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद शरीफ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, आप बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक जो है वो स्कूलों में फूड की जो है वो मेयार को बेहतर बनाने के लिए और उसको गैर मेरी फूड को रोकथाम के लिए महकमा एजुकेशन क्या इकदाम करने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के मुताबिक हम कुछ लाहा अमल तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि तालीम के साथ साथ बच्चों की सेहत का ख्याल रखना वो हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। वो बच्चे कौम के नहीं, हमारे अपने बच्चे हैं, उनकी सेहत का और तालीम का ख्याल करना, उनको बेहतर माहौल मुहैया करना, ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला तमाम स्कूलों में ये पाबंदी लगा रहे हैं कि कोई नाकस रेडी वाला या छाबड़ी या खांचा फरोश वहाँ पे नाकस चीज़ें फ़रोख्त ना करें, और जो कैंटीन्स बनी हुई हैं ऑलरेडी स्कूलों में, उन पे भी हर किस्म की मियारी चीज़ें मुहैया की जाएं। जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है फूड डिपार्टमेंट वालों ने, उसको भी हम डिसैमिनेट कर रहे हैं। उन पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस पर तमाम जो चीज़ें खाने वाली हैं वो भी तज़किरा किया हुआ है, और जो चीज़ें उन्होंने मना किया हुआ है फूड डिपार्टमेंट ने, उनका भी तज़किरा किया हुआ है। वो इंशाअल्लाह ताला हम तमाम स्कूलों में, हर स्कूल में वो नोटिफिकेशन मौजूद होगा, और उस पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला उनके पैनाफ्लेक्स बना के बच्चों की सहूलत के लिए, ताकि बच्चे उससे अवेयर हों और जो खाने वाली चीज़ें हैं वो खाएं, और जो जिनसे मना किया गया है फूड टोबा टेक्सिंग में बड़ी मिकदार में गैर मियारी कैचअप की बरामदगी के बाद जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। इस हवाले से हमें अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला के दिल के मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम। पंजाब के अस्पतालों में स्टंट्स की खरीदारी के लिए 7 करोड़ 73 लाख रुपए जारी कर दिए गए। फैसलाबाद समेत 11 इस्लामी मरीज मुस्तफीद होंगे। इस वाले से बात करेंगे इमरान असलम से, बताइएगा। पंजाब भर के तमाम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स में स्टैंड्स की खरीदारी के लिए 7 करोड़ 73 लाख के फंड जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला स्टंटिंग रिडक्शन प्रोग्राम के तहत तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में स्टैंड्स की किल्लत को दूर करने के लिए फ़ंड जारी किए गए हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हेल्थ नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाहों की मद में भी फ़ंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद, जंग, टोबा और चनियोट के लिए फ़ंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद, जंग और टोबा में स्टैंड्स की खरीदारी के लिए जो है वो फीकस 20 लाख के फ़ंड जारी किए गए हैं, जबकि चनियोट में स्टैंड्स की खरीदारी के लिए 21 लाख से ज़ायद के फ़ंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को फंड्स के लिए मरासला जारी कर दिया गया है, और हदायत जारी की गई हैं कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है वो स्टैंड्स की खरीदारी के अमल को यकीनी बनाया जाए, और तमाम जो फंड्स हैं वो महकमा खजाना पंजाब की जानब से अकाउंट 1 से अकाउंट 5 में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं। जी, फंड्स जारी कर दिए गए हैं। 20,16,000 के फंड्स जारी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, जंग में ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट इंतजामिया की अदम तवज्जो की नजर हो गया। ट्रैफिक का बहाव बेहतर करने के लिए नस्ब किया गया ट्रैफिक सिग्नल्स का निजाम अमली तौर पर चंद रोज से जायद ना चल सका। बता रहे हैं आपको, जंग में ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट इंतजामिया की अदम तवज्जो के नजर ट्रैफिक का बहाव बेहतर करने के लिए नस्ब किया गया ट्रैफिक सिग्नल्स का निजाम अमली तौर पर चंद रोज से जायद न चल सका। बात करेंगे इसी हवाले से शहरियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं ये बताने के लिए। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में 3 मरकजी चौराहों पर जो है वो ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे, जिसमें अयूब चौक, थाना सदर चौक और नवाज चौक जो शामिल थे। करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो इंतजामिया की अदम तवज्जो की नज़र हो चुका है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक का दबाव जो है सड़कों पर इस कदर शदीद है कि खासूसी तौर पर स्कूलों की छुट्टी के औकात में जो है इन सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। इस हवाले से मेरे साथ जमात इस्लामी के ग्रुप लीडर डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या देखते हैं इस हवाले से ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतरी के हवाले से ट्रैफिक सिग्नल्स का कितना अहम किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जंग में जो है वो करोड़ों रुपए से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, बिलखसूस नवाज चौक, अयूब चौक और सदर थाना चौक पर। लेकिन अयूब चौक और सदर थाना चौक के सिग्नल तो बिल्कुल ही उतर चुके हैं और ना मालूम वो कहाँ गए कि कौन ले गया है। नवाज चौक पर भी हैं जो कि फंक्शनल नहीं है। हैरानगी की बात है कि टीएमए या ट्रैफिक पुलिस जो है वो दोनों उनके कोई वाली वारिस नहीं बन रहे हैं। एक महकमा दूसरे पर डाल रहा है, दूसरा पहले पर डाल रहा है। वो कहते जी हमने तो लगा कर दे दिए थे, अब इनका काम है। वो कहते जी ये हमारा काम नहीं, ये टीएमए का काम है। तो हम ये जंग की इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि इन जो ये ट्रैफिक इशारे थे इनको बहाल किया जाए और जो ट्रैफिक इशारे उतरे हैं उनके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाकर उन मुजरमों को सज़ा दी जाए। और आप देखते हैं कि शहर के अंदर जब ये छुट्टी का, स्कूलों की छुट्टी का, दफातर की छुट्टी का टाइम होता है तो तमाम रोड जाम हुए होते हैं। ये इसी वजह से है कि यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम कोई नहीं। जहाँ जंग में जो है वो दीगर मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं सीवरेज के हवाले से या सड़कों के हवाले से, तो हमारा ये मुतालबा है कि जंग में ट्रैफिक का भी कोई निज़ाम तरतीब दिया जाए और इन ट्रैफिक की बड़ी तमाम सड़कों को वन वे किया जाए। का कहना है कि ट्रैफिक सिग्नल्स की जो है वो तबाही के जिम्मेदारान के खिलाफ जो है इंक्वायरी मुमकिन की जाए और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के वजह इकदाम भी मुमकिन किए जाएँ ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वैस। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दूध क्यों गिराया, एक और मालिकन आपे से बाहर हो गई। फैसलाबाद में 10 साल घरेलू मुलाजिमा नूर सादिया पर बदतरीन तशद्दुद, बच्ची को थप्पड़ों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन CBP सारा अहमद कहती हैं बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़िया निशानात मौजूद हैं। मालिकन के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजिमा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। दूध क्यों गिराया, एक और मालिकन आपे से बाहर हो गई। फैसलाबाद में 10 साल घरेलू मुलाजिमा नूर सादिया पर बदतरीन तशद्दुद, बच्ची को थप्पड़ों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। बिल्कुल, ये पीपल्स कॉलोनी का इलाका है थाना, जहाँ पर बच्ची के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। ये बच्ची वहाँ पर काम करती थी। बच्ची की उम्र 9 साल थी और यहाँ पर बच्ची के ऊपर रात को महल्लेदारों के मुताबिक जो है बच्ची को मारा पीटा गया। दूध उबलने की वजह से बच्ची के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। ये मालिकान जिनके पास वो रहती थी उनमें से एक का नाम जो था वो मदीहा था, जबकि उनके शौहर जिनकी जानिब से बच्ची के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, उसको मारा पीटा गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से और मोहल्लेदारों की जानिब से जो है वो थाने को बताया गया। पीपल्स कॉलोनी थाना की जानिब से बच्ची को सुबह के वक्त में जो है अपनी तहवील में लिया गया, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से इस वक्त बच्ची उनकी तहवील में है। उनकी डायरेक्टर सारा की जानिब से जो है ये बताया जा रहा है कि बच्ची के ऊपर जो है वो निशानात हैं जिस्म पे उसके ऊपर, जिसके लिए उसको मारा भी गया है काफ़ी। इस वक्त बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन की तहवील में है और जिन लोगों ने उनके साथ ये काम किया है उसके ऊपर जो है वो केस भी किया जाएगा। जी मरियम, ये बताइएगा कि ये वाकया कब पेश आया और फैसलाबाद के किस इलाके में पेश आया? इसके अलावा ये भी बताइएगा कि बच्ची की इस वक्त क्या हालत है? ये जगह जो है ये पीपल्स कॉलोनी थाने के हदूद के अंदर आती है। पीपल्स कॉलोनी का ही इलाका है जहाँ पर ये वाकया पेश आया। यहाँ पर अगर बात करें बच्ची की हालत की तो बच्ची जो है इस वक्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से बच्ची के जिस्म पे जो है वो वाज़िया निशानात हैं कि उसको जो है वो मारा पीटा जाता था। बच्ची के मुताबिक बच्ची को जो है वो थप्पड़ों और कुंसों के साथ जो है उस पर तशद्दुद किया जाता था। जी मरियम, हमें बता रही हैं कि बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। मरियम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूध क्यों गिराया, एक और मालिकन आपे से बाहर हो गई। फैसलाबाद में 10 साल घरेलू मुलाजिमा नूर सादिया पर बदतरीन तशद्दुद का यह वाकया है। बच्ची को थप्पड़ों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को तहवील में ले लिया। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रुबीना इकबाल। रुबीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या वाकया है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कब तहवील में लिया बच्ची को? जी शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को हेल्पलाइन कॉल के जरिए से इतला मिली है कि पीपल्स कॉलोनी के एरिया में एक घर में एक 9-10 साल बच्ची को बतौर घरेलू मुलाजमा रखा हुआ है हसन नामी शख्स ने, और वो और उसकी बीवी उस बच्ची को मामूली गलतियों पे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और अक्सर औकात उनके घर से बच्ची के
जोर जोर से चीखने की, दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ें आती हैं, मिन्नत समाजत की आवाज़ें बाहर तक आती हैं, जिससे अहले मोहल्ला ने तंग आकर उस बच्ची को रिपोर्ट किया है और इस वाक़े के बारे में। और इस पर फिर हम लोगों ने जो वायरल वीडियो हुई है उसको भी हमने नोटिस में लिया है। मुतलका पुलिस स्टेशन के ज़रिए से हमने बच्ची को उस घर से मालिकान के तशद्दुद से निजात दिलवाई है, उसको रेस्क्यू किया है। बच्ची के बयान के मुताबिक उसकी वालदा ने इनके यहाँ उसको घरेलू मुलाजमा के तौर पे रखवाया है तकरीबन कुछ 6 माह पहले, और मामूली गलतियों पे मालिकान उस पर तशद्दुद करते हैं। जैसे अगर उससे कोई चीज़ गिर गई है, कोई ग्लास टूट गया है, कोई उसने बात नहीं मानी, जैसे उसने सफाई ठीक नहीं की, और उससे मुख्तलिफ काम करवाते हैं घरेलू, जैसे सफाइयाँ करना, वाशरूम धोना और कपड़े धोना वगैरह। जबकि बच्ची बहुत कम उम्र है और ऑब्वियसली उसका अपना बचपन है, तो उससे अगर उससे गलतियाँ होती हैं तो उससे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हम बच्ची को रेस्क्यू कर लिया है। बच्ची के मुल्जिमान के खिलाफ FIR थाना पीपल्स कॉलोनी में उसका इंदराज करवा दिया है और एक मुल्जिम भी गिरफ्तार हो गए। जी रुबीना साहिबा, आप ये भी बताइएगा कि इस किस्म के वाकयात फैसलाबाद में बहुत तवातर से देखने में आ रहे हैं। बताइएगा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्यों कोई किरदार अदा नहीं कर रहा चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, और चाइल्ड लेबर एक्ट पर क्यों अमल नहीं करवाया जा रहा? इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि चाइल्ड लेबर जो है ना वो लेबर डिपार्टमेंट का मैंडेट है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का मैंडेट जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन से है। लेकिन ऐसे जब वाकयात हमारे सामने आते हैं तशद्दुद के, तो हम उन पर नोटिस लेते हैं और बच्चे को उस जगह से रेस्क्यू करते हैं ताकि उसे प्रोटेक्शन फ्राहम की जाए हमारी चेयरपर्सन मैडम खारा की डायरेक्शन पे। तो जो ये केसेस हैं इसको हम ये कहेंगे कि ये हम पे लोगों का एतमाद है कि अगर कहीं पे कोई मामूली वाकया पेश आ रहा है या शदीद तशद्दुद का वाकया पेश आ रहा है, वो हमें फौरन रिपोर्ट होता है और हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। इसीलिए वाकयात नजर भी आ रहे हैं कि यहाँ पे एक्शन लिया जाता है। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। रुबीना साहिबा भी हमें अपडेट करें थी इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में ₹1 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹288.80 का हो गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर ₹279.80 पर बंद हुआ। आपको अपडेट करें डॉलर के हवाले से, इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में ₹1 की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर ₹288.80 का हो गया है। गुज़िश्ता रोज डॉलर ₹289.80 पर बंद हुआ था। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न चिन्योट में भी आशिकाने रसूल का जोशो खरोश अरूज पर है। स्टॉल्स पर रश लग गया है। बात करेंगे इसी हवाले से कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत बासादत में चंद दिन बाकी है। शहरियों का खासा रश देखने को मिल रहा है रबीउल अव्वल स्टॉल्स पर। अगर मेरा कैमरामैन अली ज़ेब दिखा सके तो आपको इस टाइम काफ़ी शहरी सामान खरीद रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लेने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या खरीदना है? जिस तरह के आपको पता है कि ईद उल मिलाद नबी में दिन बहुत कम रह गए हैं, तो हम बस तैयारी में हैं, गली वगैरह सजाने के लिए सामान ले रहे हैं यार। काफ़ी की गली से जाते हैं तो क्या क्या चीज़ परचेज करना है? यही झंडियाँ वगैरह, ये इसके अलावा लाइटिंग वगैरह हो गई, मुख्तलिफ सामान होता है। जैसे कि आपको पता है कि पूरे साल में ये सिर्फ एक दफ़ा ये दिन आता है, और जो आशिकाने रसूल हैं वो इसे पुरजोश पुरजोर से मनाते हैं। आप क्या लेने आए हैं? मैं भी थोड़ा सा सामान खरीदने आया था, बाकी नहीं खरीद रहा हूँ, बस खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद है मेरे ख्याल में, गलियाँ सजाने के लिए लाइटें ले रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं अंकल? हम मस्जिदों के लिए झंडियाँ ले रही हैं, बत्तियाँ ले रही हैं, और घरों को सजाती हैं, महलों को सजाती हैं। बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर अपडेट करने के लिए।